नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। Namaskar friends, and welcome to this briefing on the COVID situation. As you are aware, two very important decisions have been taken by the government today on vaccines. To brief us on that and more, we have with us Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, Health Secretary Shri Rajesh Bhushan ji, DG ICMR Shri Dr. Balram Bhargav ji. First of all, there will be a presentation by the Health Secretary and followed by remarks by Dr. V.K. Paul. Over to Rajesh Bhushan ji. नमस्कार। देश में जो कोविड की स्थिति है और वैक्सीनेशन की स्थिति है उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। कैन वी एड्रेस द साउंड? दिस इज इकोइंग, माय अपॉलॉजीज। Okay, so this is a snapshot of the position of infection today in the country. We have 89.51% people who've been cured. There are 1.25% deaths and there are 9.24% active cases. If we look at the new cases, you will find that the previous highest surge has already been crossed and the trend is going upward. So that is a cause for worry, and that is something that we continuously share with the states and UTs and try to help them in tackling the pandemic in a more effective manner. As we engage with you today, there are 53 central teams which are camping in 53 districts of the country, which are showing surge in cases. And these central teams are helping the district administration as well as the state administration, particularly the health department and the revenue officials, in tackling the pandemic. If we look at daily deaths, they also are showing an increasing trend. However, the previous surge highest point was 1,114. Presently, we have reported 879 deaths. So these are the states of concern, and you will see week on week how average daily cases are going up, how the test per million is behaving in that state, and what is the daily RT-PCR share, and what is the weekly positivity rate. In case of Maharashtra, you will find that the average daily cases week on week have grown significantly and have reached a level of 57,000 plus. The test per million are also growing, but they are not keeping pace with the growth of average daily cases. And if we look at the share of RT-PCR tests, that's progressively coming down. So that is something that we repeatedly request the state to address. The ideal proportion is 70% RT-PCR tests and 30% rapid antigen tests, because we believe that both tests are important. Rapid antigen tests have their value, particularly as a screening test in areas which are densely populated and in those areas which are showing a recent cluster of new cases. So once they are used as a screening test, those who test negative in those rapid antigen tests have to be mandatorily subjected to RT-PCR. The weekly positivity rate, you will see, is very high, 24.66%. And this is when the RT-PCR tests are relatively low. So we have reason to believe that if RT-PCR tests proportion goes up, then the positivity may show a corresponding increase. And this is not something which is specific to Maharashtra. This is something to all such states.
again an instance where a ramping up of RT-PCR abilities or test capacities is needed. We have through ICMR offered to the states that they could, if they so desire, make use of mobile testing labs. These technologies have been perfected, developed within the country, and there are multiple private players who are offering such mobile tests at a very cost-effective rates. RT-PCR machines have also been put on the government e-marketplace, which is GEM, so that procurement could be easier and could take lesser time. Weekly positivity in case of Chhattisgarh is increasing from 1.5%, it has increased to 27.95, almost 28%. So this is another cause for concern. If we look at Uttar Pradesh, you will find that from average 89 cases a day, it has increased to 10,000 cases a day. The average test per million are also increasing, but as I told you is the case with other states, the rate of change of cases and rate of change of test per million have to keep pace with each other, which is not the case here. The average daily RT-PCR tests are around 45 to 44%, so they also need to be ramped up. The weekly positivity is below 5, 4.84, but it is showing a rising trend. अगर हम पंजाब को देखें तो ये 300 के लगभग केस प्रतिदिन रिपोर्ट होते थे फरवरी के मध्य में, अब ये बढ़कर 3000 केसेस हो गए हैं प्रतिदिन. एवरेज टेस्ट पर मिलियन, प्रति 10 लाख की आबादी पर आप कितने टेस्ट करते हैं, वो बढ़े ज़रूर हैं लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं जिस अनुपात में प्रतिदिन आने वाले केसेस बढ़ रहे हैं. RT-PCR का जो शेयर है वो ज़रूर 70% है. वीकली पॉजिटिविटी में एक हल्का डिक्लाइन हम पिछले 2 सप्ताहों में देख रहे हैं, लेकिन डिक्लाइन के बावजूद ये जो पॉजिटिविटी है ये 8% है. आप लोग जानते होंगे कि WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप 5% या उससे कम पॉजिटिविटी पर हैं तो चीज़ें नियंत्रित करने में आसानी होती है. अब अगर कर्नाटका की स्थिति को देखें तो यहाँ 404 केस आते थे प्रतिदिन औसतन, अब ये बढ़कर 7700 हो गए हैं. टेस्ट पर मिलियन बढ़े हैं लेकिन उस अनुपात में नहीं. जो अनुपात RT-PCR टेस्ट्स का है, द शेयर ऑफ एवरेज RT-PCR टेस्ट्स इन टोटल टेस्ट्स, that is quite good, it's 92%, but the weekly positivity rate is increasing and it is at 6.45. If we look at Gujarat, from 275 cases per week in mid-February, they have increased to 4,500 cases in the recent week. Test per million have increased substantially from 267 to 1574, but they need to be increased further. If we look at the share of RT-PCR, it is still hovering around 48 to 50%, needs to go up. Weekly positivity had declined in mid-March, but is again climbing up. It is less than 5%, but at 4.5, it is showing an upward trend. If we look at Madhya Pradesh, from 267 cases on an average every day, ये बढ़कर 4900 हो गए हैं. इनके एवरेज टेस्ट पर मिलियन 441 हैं, इनको और बढ़ाने की आवश्यकता है. RT-PCR शेयर 73% है, ये संतोष की बात है, लेकिन वीकली पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है और 13% पर अभी है. तमिलनाडु में भी लगभग वही स्थिति है. 450 केस औसतन प्रतिदिन आते थे फरवरी के मध्य में, अब ये बढ़कर 5200 हो गए हैं. एवरेज टेस्ट पर मिलियन बढ़े थे लेकिन इधर फिर पिछले 2 सप्ताहों से वो घट रहे हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है. RT-PCR का शेयर 97 से 98% है, ये संतोष की बात है, लेकिन वीकली पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और अब बढ़कर लगभग 7% से अधिक हो गया है.
दिल्ली को अगर हम देखें तो यहाँ औसतन 134 मामले नए आते थे फरवरी के मध्य में, अब ये बढ़कर 8,104 हो गए हैं। ये औसत वीकली औसत है। अगर आप किसी एक दिन का देखें, जैसे पिछले 24 घंटे का देखें, तो दिल्ली में 11,000 से ज़्यादा केसेस आए। एवरेज टेस्ट पर मिलियन यहाँ बढ़ा है 5,256, इसको कुछ और बढ़ाने की आवश्यकता है। RT-PCR का शेयर भी बढ़ा है, 62% हो गया है, इसे बढ़ाकर 70% किया जा सकता है। वीकली पॉजिटिविटी रेट तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, 4 सप्ताहों में ये आधा प्रतिशत से बढ़कर अब लगभग 8% हो गया है। हरियाणा में भी केसेस की संख्या बढ़ी है, 2,900 के लगभग केस प्रतिदिन आते हैं। एवरेज टेस्ट पर मिलियन बढ़े हैं, लेकिन और बढ़ाने की ज़रूरत है। 901 टेस्ट प्रति 10 लाख की आबादी में हरियाणा करता है। RT-PCR का शेयर अच्छा है, ये 90 से 91% इनके कुल टेस्ट RT-PCR होते हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, 11.5% है, ये चिंता की बात है, इसलिए टेस्ट्स बढ़ाने की आवश्यकता है। केरल में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हम देख रहे थे 4 सप्ताहों से, वो पिछले 3 सप्ताह में अब फिर से बढ़ने लगा है। केरल में केसेस 1,800 प्रतिदिन हो गए थे 4,000 की ऊंचाई से घटकर, लेकिन अब फिर वो 5,000 के लगभग प्रतिदिन हो रहे हैं। एवरेज टेस्ट per million per day is declining. This needs to be increased. RT-PCR का शेयर 43% है, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 2% से नीचे आ गया था, लेकिन अब ये फिर बढ़ा है और 8% से ऊपर चला गया है। तो ये तो कंसर्न के राज्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अलावा बाकी राज्यों में केस नहीं बढ़ रहे हैं। तो केस जहाँ भी बढ़ते हैं वहाँ हम टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इन 5 बिंदुओं पर कार्रवाई करने की सलाह राज्यों को देते हैं। इन 5 में से 4 बिंदुओं पर बहुत प्रभावी कार्रवाई पिछले साल हुई थी सभी राज्यों के द्वारा, और कोविड के नंबर्स पर नियंत्रण पाया गया था। हमारा बार बार राज्यों को यही परामर्श है कि कोई कारण नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी को पुनः अगर हम एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को न मिलें। अब कुछ बात वैक्सीनेशन के बारे में। आज सुबह 8 बजे तक 10,85,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज़ हमारे देश में एडमिनिस्टर हुई। पिछले 24 घंटे में 40 लाख से ज़्यादा डोजेज़ एडमिनिस्टर हुई। और जो 45 बरस से ऊपर के लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको कितनी डोजेज़ दी गई, ये जानकारी हमने इस स्लाइड में आपको दी है। समय समय पर ये विमर्श भी हमारे मित्र करते हैं मीडिया में कि क्या वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है कि नहीं है, और ये आंकड़े पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अलग अलग मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक हो, पब्लिक स्पेस में भी आए हैं। आज हम भी आपको एक बड़ी जो बर्ड्स आई व्यू है, विहंगम दृष्टि, वो इस पर देना चाहते हैं। डोजेज रिसीव्ड बाय स्टेट्स, हमने अभी तक 13,10,90,000 डोजेज राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को दी हैं। 13,10,00,000। इनमें से अगर हम देखें कि राज्यों ने जिन डोजेज़ का इस्तेमाल किया, जिनको कंज्यूम किया, और प्रत्येक राज्य का जो वेस्टेज है, हर राज्य का अलग अलग है। एक तरफ केरल जैसे राज्य हैं जहां 0 वेस्टेज है, केरल में 0 वेस्टेज। दूसरी तरफ अनेक ऐसे राज्य हैं जहां आज भी 8 या 9% वेस्टेज है। तो अगर वेस्टेज को मिला दें और कंजम्पशन को देखें तो राज्यों ने 11,43,00,000 डोजेज़ का इस्तेमाल किया, वेस्टेज और कंजम्पशन को मिलाने के बाद। राज्यों के पास आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये 11 बजे के आंकड़े हैं, राज्यों के पास जो उपलब्धता है, अनयूटिलाइज्ड डोजेज अवेलेबल विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसकी संख्या 1,67,20,000 से अधिक। So that means
that today as we talk to you 1,67,20,000 plus doses are available with states and UTs for administration. इस माह में यानी अभी से लेकर अप्रैल माह के अंत तक जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी वो 2,01,22,960 डोजेस की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेस के अभाव की नहीं है। हम ससमय राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध कराते हैं। जैसा हमने पूर्व में भी आपको कहा था कि जो बड़े राज्य हैं उनको हम एक समय में 4 दिन की सप्लाई देते हैं और प्रत्येक चौथे या 5वें दिन पर उस सप्लाई को रिप्लेनिश करते हैं, यानी फ्रेश सप्लाई देते हैं। जो छोटे राज्य हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सब चीज़ें देखी जानी हैं, इसलिए छोटे राज्यों को एक समय में हम 7 से 8 दिन की वैक्सीन सप्लाई करते हैं और प्रत्येक 7वें या 8वें दिन पर उनके भी सप्लाई को रिप्लेनिश करते हैं, यानी फ्रेश सप्लाईज देते हैं। तो इसलिए अब आवश्यक ये हो जाता है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक दिन अपने राज्य के भीतर जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं वहाँ किस पॉइंट पर कितनी अनयूटिलाइज्ड डोजेज हैं इसकी समीक्षा करें और यदि आवश्यकता है तो एक कोल्ड चेन पॉइंट से दूसरे कोल्ड चेन पॉइंट तक डोजेस को रीअप्रोप्रिएट करें बेस्ड ऑन द कंजम्पशन पैटर्न्स। किसी भी राज्य में ऐसी संभावना हो सकती है कि किसी एक ज़िले में अधिक कंजम्पशन हो रहा है, किसी अन्य ज़िले में कम कंजम्पशन हो रहा है। हम ये भी नहीं चाहते कि जहाँ कम कंजम्पशन है वहाँ वैक्सीन की डोजेस पड़ी रहें और फिर वो एक्सपायर होने की संभावना उत्पन्न हो। इसलिए हमारा अनुरोध राज्य सरकारों से ये रहता है कि वो प्रतिदिन, जैसे हम मंत्रालय में प्रतिदिन ये समीक्षा करते हैं, वैसे राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र भी ये समीक्षा करें और देखें कि उन्हें कहाँ से रीअप्रोप्रिएट करना है, अगर करना है तो। ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि पहली बार ये हुआ है इस सप्ताह में कि विश्व में जो औसतन प्रतिदिन डोजेज एडमिनिस्टर की जाती हैं उसमें भारत पहले नंबर पर आ गया है। ये आंकड़े ब्लूमबर्ग नामक एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट में दिए जाते हैं प्रतिदिन। अगर अप्रैल माह के हिसाब से देखें, ये 7 डे रोलिंग एवरेज है, तो भारत में औसतन प्रतिदिन 41,70,000 डोजेज एडमिनिस्टर की जाती हैं। चाइना में इससे कम 39 लाख, यूएस में उससे भी कम 32 लाख, ब्राज़ील में उससे भी कम 8 लाख, जर्मनी में उससे भी कम और यूके, फ्रांस और इटली में उससे कहीं कम। तो ये एक संतोष की बात है और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि राज्य सरकारों ने, संघ शासित क्षेत्रों ने और केंद्रीय सरकार ने मिलकर बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है। इसके पीछे एक लंबी लॉजिस्टिक्स की कहानी है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस की कहानी है, इसके पीछे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कहानी है, जिसको हम अधिकांश समयों पर ओवरलुक करते हैं। हम नहीं देखते कि कितने सैकड़ों लोग इस काम में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो वैक्सीन की डोज़ आप तक, मुझ तक पहुंच पाती है और हमें वो टीके के रूप में प्राप्त होती है। अब हम आपको दिखाना चाहते थे फास्टेस्ट रैंप अप। आप देखेंगे कि अनेक देश ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन की गतिविधि हमसे पहले प्रारंभ की थी। अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुए 119 दिन हो चुके हैं। उसी प्रकार से इंग्लैंड में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुए 125 दिन हो चुके हैं और जर्मनी में 106 दिन, फ्रांस में 106 दिन, इटली में 106 दिन हो चुके हैं। हमारे देश में वैक्सीनेशन के 86 दिन हुए हैं, 86 डेज़। हमारे बराबर के अगर आप
देखें दिनों की तुलना के आधार पर तो ब्राज़ील में 85 दिन और टर्की में 88 दिन वैक्सीनेशन के हुए। 86 दिनों में हमने 10 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ एडमिनिस्टर की और 85 दिन में ब्राज़ील ने 2.5 करोड़ और टर्की ने 2 करोड़ से कम डोजेज़ एडमिनिस्टर की। तो यानी सबसे कम दिनों में सबसे तेज़ गति प्राप्त करना ये भी भारत में दर्ज किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आज जब इस प्रेस वार्ता में हम मिल रहे हैं तो पेंडेमिक की सिचुएशन आपने देखी, वैक्सीन के रैंप अप को, वैक्सीन के प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो एफर्ट हो रहे हैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा टीका उत्सव मनाया जा रहा है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, और उसमें जो गति लाई जा रही है टीकाकरण में वो भी आपके समक्ष है। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि वो इंक्रीज़ जो हुई है उसके बारे में राजेश जी आप कहना चाहेंगे? कल जितना किया हमने देखिए, अब कल 40 लाख से ऊपर वैक्सीन लगे हैं और इसमें गति और लाई जाएगी। सब समूह जुड़ के इसमें लगे हैं। जहां हम 45,000 के लगभग एक दिन में टीकाकरण के सेंटर्स रखते थे, होते थे, तो इस मिशन मोड में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश दिया उसके बाद इसको उत्सव को मनाया जा रहा है। कल हमारी जानकारी है कि 71,000 जगह पे टीकाकरण हुआ, 71,000, और आज सुबह मैं जब चेक कर रहा था तो 65,000 के करीब सेंटर्स एक्टिव थे। तो एकदम क्वांटम जंप है डिलीवरी ऑफ वैक्सीन का, और ये आज हम आपको ये बड़ी खुशी से बता रहे हैं। और 14 अप्रैल तक जाते जाते कई मानक, कई माइलस्टोन और भी आपके समक्ष आएंगे। वैक्सीन के ही प्रावधान में 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई हैं और उनके ऊपर कलीग्स हमारे डॉक्टर भार्गव, राजेश जी भी बताना चाहें। लेकिन मोटे तौर पे देखिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि एक तीसरा वैक्सीन हमारे देश में अब इमरजेंसी यूज़ के लिए आगे आ गया है। ये स्पुतनिक वैक्सीन है, भारत और रशिया की, रूस की मिली-जुली कोलैबोरेशन है। ये बहुत मेहनत के साथ इस वैक्सीन के सिस्टमैटिक स्टडी करते करते अच्छे तरीके से इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ, पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। ट्रायल में गए, महीनों से ये मेहनत हो रही है, ट्रायल के रिज़ल्ट्स देखे गए, और जो डेटा हमारे देश का है उसको बाहर के देशों के डेटा के साथ मिला के 28-30 हज़ार के करीब जो पेशेंट का डेटा है उसको लेके जो फैसला किया गया है वो आपको मालूम है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके बारे में, इसके रोल आउट के कार्यक्रम के बारे में आपके सामने प्रस्तुति होगी। सारे हमें ये मालूम है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, वैक्सीन भी आएगा। तो we'll continue to discuss how it has to be, this opportunity has to be used and used expeditiously, quickly and comprehensively, और वो आपके सामने आएगा। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन को देश में आना, देश में लागू होना, ये डेवलपमेंट एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ ही आज अभी आपने प्रेस रिलीज़ देखी है, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, ज़रूरत होगी तो कर देंगे। लेकिन उसके आधार पर एक बहुत सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी बदलाव आया है। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या WHO की इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, then that or those vaccines are approved for use in India. A prior precondition of a clinical trial will not be applicable, and this is a provision for COVID-19 vaccines only under the special circumstances of the day of the pandemic related urgency that is prevailing in the country. Just to complete that narrative, yes, a bridging study will continue
even after this is being rolled out, and the data will be seen by the regulator as per the procedures. But the prior need for clinical trial will not be there. This therefore compresses the timelines, and this is a very liberal regulatory step that will increase the access to vaccines that are manufactured in other countries. For 100 days, for the first 100 individuals who will receive the vaccine, their safety will be watched for a period of 7 days. So that's another small condition. But essentially, if these regulators, any of these regulators have approved the vaccine, this vaccine is now ready to be brought into the country for use and manufacturing and fill and finish. Very significant development, and we hope and we invite the vaccine makers such as Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, and others who are in the other stages eventually, who will seek the licensure from any of these agencies to be ready to come to India at the earliest possible. That was my first point. My second point relates to a very disturbing issue with regard to Remdesivir. हमने इसकी चर्चा लास्ट टाइम भी करी थी. रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, खूब स्टडीज़ हुई और उनके बेस के ऊपर इसको भारत के क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में चिन्हित किया गया है. क्लियरली स्टेटेड इसका इस्तेमाल बहुत नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उस गाइडलाइन में इसको चिन्हित किया गया है और इसकी सारी साइंटिफिक डिस्कशन आईसीएमआर की नेशनल टास्क फोर्स में हुई. उसके बाद जॉइंट मॉनिटर ग्रुप ने इसको अपनाया और बिल्कुल क्लियरली साइंस के बेस के ऊपर, और उसके ऊपर नज़र रहती है हमेशा, नया डेटा आता है फिर देखा जाता है. इसको हमने इन्वेस्टिगेशनल ड्रग कहा है और उसका रोल और उसकी पोजीशन जो है कि कहाँ इस्तेमाल करना है, किस कंडीशन में करना है, कितना देना है, वो बिल्कुल क्लियरली उसमें स्टेटेड है. इन शॉर्ट, ये मेडिसिन उन व्यक्तियों में दी जाती है जो अस्पताल में दाखिल होंगे. घर में जो लुक आफ्टर हो रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, माइल्ड केसेस हैं, उनमें ये एंटीवायरल एजेंट यूज़ नहीं करना है. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ यूज़ ऑफ रेमडेसिविर इन होम सेटिंग. नो, this is required for those individuals who require hospitalization and are not only that, are on oxygen. That is the precondition. उस सिचुएशन में इस मेडिसिन को दिया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग की तरह से. इसका मतलब कुछ कंसेंटिंग प्रोसीजर होगा, बिकॉज दीज आर द ड्रग्स दैट हैव कम अप also for emergency use in the course of the pandemic. So this is a drug to be used only in hospital. This is a drug to be supplied only to the hospital, not on the chemist shop, to be procured by a patient. ये चीज़ें प्रोक्योर की लाइन लग रही है, ये डिस्टॉर्शंस हैं, ये गलत डायरेक्शन में जा रही है, उससे पैनिक भी हो रहा है, भ्रम भी हो रहा है. हम इसको बड़े ज़ोर के साथ और विनती करते हुए ये कहेंगे कि रैशनल यूज़ होना चाहिए रेमडेसिविर का. हॉस्पिटलाइज इंडिविजुअल में जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, अस्पताल में ही ये सप्लाई होगी, इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी की तरह इसको लिया जाएगा और उसी टाइम पीरियड उसी डोज के लिए लिया जाएगा जिसको कि डॉक्टर भार्गव के अंडर जो नेशनल टास्क फोर्स है और जेएमजी जो हमारी मिनिस्ट्री में है, उन्होंने इसको नेशनल प्रोटोकॉल कोविड-19 का जो है उसमें लिखा है. और ये भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे विदित है आपको कि इसका एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, इसकी थोड़ा सा शॉर्टेजेस इन सम एरियाज़ की खबरें आई थी, वो सब उसमें सुधार आ गया है. कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये मेडिसिन प्लेंटीफुल अवेलेबल है, ठीक तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है. ये बात आप प्लीज़ लेकर चलिए. और मैं विनती करता हूँ अपनी फिजिशियन कम्युनिटी को, हम सब की तरफ से कि जो इसका रैशनल, जुडिशियस, करेक्ट यूज़ है, आप प्लीज़ वही करिए. पेशेंट को भी मत इंडिकेट करिए कि भाई ये कर लीजिए, ये करिए. इस तरह से देश को, समाज को और व्यक्ति विशेष को नुकसान होता है. और मुझे बहुत खुशी है कि आज दोपहर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक प्रेस रिलीज़ करी है और उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जुडिशियस यूज़ ऑफ इंजेक्शन रेमडेसिविर होना चाहिए और पब्लिक को पैनिक नहीं होना चाहिए. तो डॉक्टर कम्युनिटी, सरकार,
हम आप सबको अपील करती है, सब लोगों को, और साथ में ही पर्टिकुलरली हमारे फिजिशियन फ्रेटर्निटी को, कि इस दवाई का इस्तेमाल जिन कंडीशंस के लिए किया गया है उसी में करिए, उसी में अप्रोप्रिएट है। उसके बाहर जाना इरैशनल है, अनएथिकल है, और ये नहीं होना चाहिए। बहुत ज़ोर से मैं कहना ये चाहूँगा। पिछली बारी डॉक्टर भार्गव ने और भी हमें एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं आज। तीसरा मुद्दा आता है कि पेंडेमिक जिस तरह से बढ़ रहा है, इसमें अब हमारी जिम्मेवारी क्या है। वैक्सीन के अलावा, रैशनल ट्रीटमेंट के अलावा भी और क्या हमें करना है। तो सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल पांचों ही जो सूत्र हैं, पांचों ही जो थीम्स हैं, पांचों ही जो पिलर हैं, उनकी बात आपके सामने आगे रखी। हम टेस्ट करेंगे, हम ट्रैक करेंगे, कंटेन करेंगे, हम ट्रीट करेंगे घर में या अस्पताल में, और रेमडेसिविर तभी इस्तेमाल करेंगे जब उसकी ज़रूरत है। हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे, हम वैक्सीन को अपनाएंगे। यही 5 पिलर्स के साथ, गुणों के साथ, सूत्रों के साथ, टूल्स के साथ और हथियारों के साथ हमने ये लड़ाई लेनी है। हम पूछा कही जाता है कई बारी कि ये जो कर्व ऐसे चला, इसको कैसे नीचे लाएं। तो एक तरह से सोचे तो उसका जवाब ये है कि ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। सोचा जाए तो हम कितनी मेहनत करेंगे समाज कि इसको नीचे लेके आए। हम उस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए क्या हम कर रहे हैं। क्या हमने 100% मास्क अपनाया। हम मास्क अगर कल से, आज से सब कोई पहन ले तो एकदम से इसमें गिरावट आएगी, देखते देखते ही गिरावट आएगी। हम इस वैक्सीन को क्यों नहीं अपना रहे जितना अपनाना चाहिए। हम भीड़ ना करें, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें, तो ये वायरस रुकेगा ही रुकेगा। और सबसे ऊपर जो मैंने बार बार, हम सब ने बार बार यहाँ पे कहा है कि मास्क का जो फेस को कवर करने का जो सोशल वैक्सीन है, इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, इसको अपनाना है। इसकी मुहिम हमें आज से शुरू करनी चाहिए, हर तरह से शुरू करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखे जिसने मास्क नहीं पहना, कोई भी व्यक्ति घर में भी नहीं ऐसा दिखे जब घर में बैठे हुए। आप खबरें ये सुन रहे हैं कि अब कोविड आता है तो एक नहीं सारे ही बीमार हो जाते हैं। तो सारे कहाँ से हुए, एक लाया ना पहले तो, लेकिन इतनी तेज़ गति से बाकियों को लगता है तो कैसे बचेगा। ये मास्क पहना होगा तो बचेंगे ना हम। और जिनको वैक्सीन एलिजिबल हैं जो व्यक्ति, उनको वैक्सीन मिलेगा तो वो बचेंगे। तो इसको आज एक लाइन जो मैं आपके सामने कह चुका हूँ और दोबारा फिर कहूँगा कि इस बढ़ते हुए कर्व को रोकना है। कि आप पूछें कैसे रोकना और कब रुकेगा, ये हम पे निर्भर करता है कि हम अब कितनी मेहनत कर लें। नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत सीरियस सिचुएशन इमर्ज हो रही है। कुछ प्रदेशों में ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये देशव्यापी समस्या है। ये आज हम दोबारा कह रहे हैं, पहले भी हमने इसी मंच से पहले भी कहा, देशव्यापी समस्या है। और जो प्रदेश जिनमें नंबर अभी कम है, वहाँ भी अगर ट्रेंड को देखें तो ठीक नहीं है। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हम जो अपनी जिम्मेवारी निभाएं और मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, भीड़ कम करके, हाइजीन करके इसको रोकें। और सबसे ऊपर मास्क, और सबसे ऊपर उसके साथ साथ है कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जिनकी जान बचानी है, उनको टीका लगे। और आपने देखा कि टीकाकरण की स्पीड कैसे बढ़ रही है, टीकाकरण कितना उपलब्ध है, इसको अपनाइए। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ये जो इधर चला हुआ है रॉकेट की तरह, इसको हम कैसे रोक के नीचे लाएं, हेडविंड कैसे पैदा करें। ये अगर जहाज़ की तरह चला हुआ है तो कैसे हवा लाएं कि ये स्लो हो जाए। चेन ऑफ ट्रांसमिशन कैसे रोकें। वायरस का प्रभाव एक से दूसरे को जाने के लिए जो उसकी मर्जी है उसको तोड़ना है, उसको रोकना है, उसको दबाना है। नहीं तो फिर वो आगे चलता ही रहेगा, उसने चलना है। उसको बहुत लोग ऐसे मिल रहे हैं जो इररिस्पॉन्सिबल है, उनको पकड़ता है, उनसे फिर अगलों को पकड़ता है। ये मास मूवमेंट होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, इसकी गूंज होनी चाहिए। आज जो बात है ये अगले हफ्ते में भी टाइम हमारा कम हो जाएगा। आज अपनाएंगे तो हम फिर बच पाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा है, सहना पड़ेगा, फिर उसके नुकसान को भी सहना पड़ेगा।
और इसका नुकसान जो है वो चारों तरफ से होता है, व्यक्ति के लिए होता है, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए डिसरप्शन होती है। हमने एग्जाम्पल पैदा करना है कि सेकेंड वेव को इंडिया ने कैसे हैंडल किया। वेव आई है, ठीक है, लेकिन जैसे सिद्ध किया सबसे अच्छी तरह से पहली वेव को संभाल करके, हम ये भी दिखाएंगे कि सेकेंड वेव को भी कैसे संभाला जाता है अपने देश को बचा के। तो विनती है कि यही 5 सूत्रों को अपनाइए। टेस्ट करना, ट्रीट करना समाज की जिम्मेवारी है, लेकिन व्यवस्था की जिम्मेवारी उसमें ज़्यादा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाना समाज की जिम्मेवारी, इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है। सरकार बता ही सकती है, मेहनत कर सकती है। वैक्सीन अपनाना दोनों की बायलैटरल जिम्मेवारी है। तो अपनी अपनी जिम्मेवारियां इन 5 बिंदुओं पे थोड़ी थोड़ी अलग अलग हैं, हम मिलके इसको करेंगे। लास्ट में ये कहना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम इस महामारी से गुजरते हैं, उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से गाइडेंस दी गई कि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनाइए। इम्यूनिटी बढ़ती है, योग होता है, अपनी सेहत अच्छी होती है तो वायरस को भी थोड़ा सा डर लगता है। इसके स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशंस हैं वो मैं आपके सामने दोबारा याद दिलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा। च्यवनप्राश जो है उसको हम 2 बारी सेवन करें। दूसरा है कि हल्दी का दूध सेवन करें कम से कम 1 बारी। ये घर में वैसे बहुत मात्रा में एक्सेप्टेड है, जब हम सर्वेस करते हैं तो बहुत पॉपुलर है ये चीज़ें, और पॉपुलर होनी चाहिए। तीसरा जो है, जो तुलसी का है, दालचीनी, काली मिर्च का काढ़ा है, उसको अपनाइए। ये 3 चीज़ों को अपनाइए, साथ में योग को अपनाइए। नेशनल टास्क फोर्स ने योग का महत्व देखा और देखा कि ये एक सेहत को बढ़ाने वाली चीज़ है, इसको अपनाना है। पोस्ट कोविड में जो सफ़र कर रहे हैं, सांस की समस्या रह जाती है, ताजगी नहीं है, हिम्मत नहीं है, उसमें ये भी करिए और साथ में योग को भी अपनाइए। और इसके अलावा कोविड होता है तो आयुर्वेदाचार्यों से आप मशवरा लेकर, माइल्ड डिजीज़ में उसके ज़्यादा डिजीज़ है, एसिम्टोमेटिक है, जो दिया जाएगा उसको अपनाइए। वो अपनी तरह से एक पद्धति है, उसको भी हमने अपनाना है। लेकिन जो इम्यूनिटी बूस्टिंग है ये तो हम सबको ही अपनाना है, और उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। ये चीज़ें उपलब्ध हैं, च्यवनप्राश हो चाहे काढ़ा हो, हल्दी घर में होती है, उसको अपनाइए, योग को अपनाइए। ये हमें मदद करेगा, और मैं ये भी मानता हूँ कि इसने हमारी मदद करी है। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी कि कैसे देश ने इसको कंट्रोल किया है और जितने लोगों ने इन चीज़ों को अपनाया है जो हमारे सेहत को बूस्ट करते हैं, तो ये भी लिखा जाएगा कि इस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को, इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को हमने अपनाया, गुण वाली चीज़ों को अपनाया तो हमें फ़ायदा हुआ। तो उसको अपनाने की भी आज हम मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से आपसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगली बारी जब हम मिलेंगे तो ये रॉकेट थोड़ा स्लो हो गया होगा, वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज़ हो रही होगी, और वैक्सीनेशन की उपलब्धता, जो नए वैक्सीन की उपलब्धता है, उसकी तरफ हमारी और प्रोग्रेस हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll take a few questions now. 22. Please identify yourself. देखिए, ये आपको समझना है कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये डिज़ीज़ मॉडिफाइंग वैक्सीन्स हैं। इन वैक्सीन्स को लगने के बाद, दोनों डोज लगने के बाद एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। सीवियर इन्फेक्शन और डेथ की चांसेस कम हो जाती है। कम 85% रिडक्शन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर वैक्सीनेशन, दैट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनली। ये आपको देख के रखना है। Number 15.
So you showed the Gujarat data. The Gujarat positivity is still not that high. But what is happening there? Because we are seeing reports of the crematoria grills melting because it can't stop, and that the High Court, the Gujarat High Court, has expressed unhappiness at the way things are going. Some political parties in Gujarat are distributing remdesivir, it seems. What is happening there, sir? We would not want to comment on observations made by Honorable High Court or other such judicial forums. We only deal with facts as we analyze them, and we have shared those facts with you. We have shown you the positivity rate, we have shown you the number of cases, how they have increased. Next time, if you are interested, we would also share with you the mortality figures. Number 16. So Leroy from Mint. So with regards to the revised norms that were announced today, now Serum Institute is manufacturing Novavax's vaccine. If Novavax gets a USFDA approval, will that also be eligible for a waiver? And also, when is the earliest that you're expecting the vaccines from this to be? You see, you need to understand what is the implication of the regulatory modification and refinement which has been done today. So there are 4 important things that you need to remember. That would then put things into perspective. I would not be dealing with specific examples of vaccines, the one that you have mentioned. But hopefully what I would tell you would then put things in perspective. So the first important issue is that today's decision has created a enabling regulatory provision. So this enabling regulatory provision is to enable what? This is to enable those foreign made vaccines, COVID-19 vaccines, which have been approved by credible foreign regulators. And what is it that we mean when we say credible foreign regulators? You would find that we have enumerated those, including WHO's emergency use list. So that is point number 2. Point number 3, it denotes a very significant streamlining and fast tracking of the regulatory approval system. And when we say streamlining and fast tracking of regulatory system, it means that the precondition of having a bridging clinical trial, which is phase 2, phase 3 here for a foreign vaccine, before it could be considered for an emergency use authorization, has been done away with and has been replaced with a parallel bridging trial. As the approval happens, the clinical trial can proceed. So therefore, the availability of the vaccine becomes that much faster. So this is broadly what has been done. It also opens up eventually doors for import of bulk or import of finished vaccines, which is in vials, or import leading to fill and finish in the country. So this is something which has to be kept in mind to analyze the far-reaching impact, the extremely significant change which has been brought about today. 116. Sir, I am Monica from Hindu Business Line. Sir, in the context of Dr. Reddy's vaccine, I would like to know whether the procurement will be opened up to the retail sector also, and also if you could throw some light on its pricing and distribution. Yesterday, the subject expert committee gave its recommendation
on this specific vaccine to the national regulator, that is the Drugs Controller General of India. Today in the morning, formal orders were issued granting this vaccine the emergency use authorization by the national regulator. There is one major company which has an agreement with the Russian counterparts. There are 5 other companies which some of your colleagues have mentioned in their news analysis, who have also signed technology transfers with the Russian counterparts. So therefore, our engagement is with all of these companies as well as their Russian counterparts. And as we proceed ahead on pricing, on production capacities, on possible timelines of rollout in the national immunization program, these issues will get crystallized and we will share them with you. Number 9. मैं परिमल हूँ एनडीटीवी से। सर, दवाइयों की कमी जो है वो देखी जा रही है। रेमडेसिविर को लेके आपने कही ये बात कि लोग अन्यथा भीड़ ना लगाएं, लेकिन टोसिलिजुमैब, आइटिलोमेजुमैब, ये तमाम दवाइयाँ नहीं मिल रही। सुबह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कई सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो क्या इस स्थिति के लिए हम लोग तैयार नहीं थे कि ऐसी स्थिति हो जाएगी जहाँ पे दवाइयों की किल्लत होगी? आप लोग क्या कर रहे हैं इस दिशा में? मैं एक वाक्य बोल देता हूँ, उसके बाद क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, उचित होगा कि डॉक्टर पॉल इसका जवाब दें। मैं केवल एक तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता था। आई वांटेड टू ब्रिंग दिस फैक्ट इन योर कॉग्निजेंस। टोसिलिजुमैब वाज नेवर पार्ट ऑफ द नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। पिछले 1 वर्ष 2 महीने या 3 महीने का समय जो गुजरा है, उसमें नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमने कहा था कि अगर माइल्ड केस है तो उसका इलाज किस प्रकार से किया जाना है, क्या दवाइयाँ दी जानी हैं, मॉडरेट है तो कैसे इलाज होगा, क्या दवाई दी जाएगी, और सीवियर केस है तो क्या इलाज होगा, कैसे दवाई दी जाएगी। तो और उसको 7 या 8 बार संशोधित किया गया अनुभवों के आधार पर और जो डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं उनके इनपुट के आधार पर। तो मेरी जो जानकारी है उसमें कभी भी नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में टोसिलिजुमैब को शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर पॉल प्लीज़ अपने जवाब। देखिए, ये दवाइयाँ इनकी उपलब्धता शुरुआत में पिछले साल में जाएँ तो कुछ इश्यूज रहे। इतनी तेज़ गति से इन सबको रैंप अप किया गया। रेमडेसिविर हम दुनिया के, मुझे बताया जाता है कि 100 देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसको एड्रेस कर लिया गया है। We don't have to be worried. And secondly, we know that when rational use of these drugs is instituted, there are gains, but the main dependence for therapy is timely referral, oxygen, and steroid, dexamethasone as well as heparin. Thank you. इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि रेमडेसिविर 7 कंपनी बना रही है, किसी देश में 7 कंपनी नहीं बना रही। और ये इंट्रावेनस दवाई है, तो ये इंट्रावेनस दवाई अस्पताल में ही देनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसकी शॉर्टेज अब तो बिल्कुल जब से एक्सपोर्ट हम लोगों ने थोड़े दिन के लिए रोक दिया है तो कोई शॉर्टेज नहीं है। राज्यों को 2 सप्ताह पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श दिया था लिखित रूप से, जिसमें उनको ये बताया गया था कि इस दवा की कमी से निपटने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, और ये भी बताया था कि क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी के रूप में नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में है तो इसे हॉस्पिटल सेटिंग में ही दिया जाना है। इस विषय में जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई थी जो संभवतः पीआईबी की वेबसाइट पे आज भी उपलब्ध होगी, जिसमें उस पत्र का उल्लेख है। नंबर 13। नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। मेरा छोटा 2 क्वेश्चन है। एक, जो इमरजेंसी यूज़ का जो रूल बदला गया है, ये क्यों बदला गया है? और सेकंड है, जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन वाला कोई अगर चाइनीज़ वैक्सीन भारत में लाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अप्रूव? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि जो भी निर्णय कोविड से जूझने के लिए
देश में लिए जाते हैं वो वैज्ञानिक आधार और तथ्यों के आधार पर लिए जाते हैं, और जो सब्जेक्ट नॉलेज के एक्सपर्ट्स हैं उनके राय मशवरे के आधार पर लिए जाते हैं। इस संशोधन के लिए जो राय आई थी वो नेगवैक की तरफ से आई थी, जिसकी अध्यक्षता मेंबर नीति आयोग करते हैं। इसमें देश भर के अनेक प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं, राज्यों के प्रतिनिधि हैं और सरकारी अस्पतालों के बाहर के भी विशेषज्ञ उसमें हैं। दूसरा जो आपने चाइनीज़ वैक्सीन के बारे में पूछा, हालांकि हाइपोथेटिकल सवाल है, उसके बावजूद मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा निर्णय की भाषा की ओर, जिसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार की वैक्सीन्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। तो यदि आप उसको देखेंगे तो इस सवाल का उत्तर उसमें निहित है। Thank you, friends. We close the press conference now. इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।